بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ صدر مملکت عارف علوی کو بڑا بخار چڑھا ہوا ہے کہ جناب میں نے اپنے اختیارات استعمال کرنے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت یہ میرا اختیار ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینی ہے۔ لیکن اس بخار کو اتارنے کے لیے کچھ مقتدرہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے بخار اتارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر چودھری پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ نے چھوڑا اور اسلام آباد پولیس انہیں پکڑ کے لے گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ایم پی او کے تحت ان کو نظر بند کر دیا گیا اسلام آباد میں۔ اچھا، اسلام آباد پولیس والے نے بڑی ڈنڈا ڈولی کر کے چک کے لے کے گئے نے، اور جو خصہ صاحب ہیں، لطیف خصہ صاحب، جو اپنی حفاظت میں اپنی نگرانی میں انہیں گھر چھوڑنے جا رہے تھے، وہ کیسے فرار ہوئے ہیں گاڑی سے نکل کے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا عدلیہ جو ہے وہ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر رہی ہے جس کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ لیکن اس سے پہلے بات کریں ہم نیب کی۔ جناب نیب ترمیم والا جو قانون ہے سپریم کورٹ میں جو چیلنج ہوا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان عمر تا بندیال، اعجاز علی احسن اور سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اب پیر پہ چلا گیا ہے، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے تھے جناب نہیں آج ہی جمعے کے دن ہی جناب انہوں نبیڑو جناب، تھاڑی کو انہیں ٹائم نہیں ہے سی کچھ کرنا۔ اور منصور علی شاہ صاحب بار بار توجہ دلا رہے ہیں، شرمندہ کر رہے ہیں یار، دوسرے لفظوں میں جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے جج ہیں ان کے، اعجاز علی احسن صاحب اور بندیال صاحب چیف جسٹس پاکستان، بار بار ان کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ آبزرویشن بھی دی تھی کہ جناب آپ یہ کیس نہ سنیں، ابھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جناب جو آئین کے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت اوریجنل جوریڈکشن میں درخواستیں آتی ہیں، ان کا بینچ کیسے بننا ہے، ان کی سماعت کیسے ہونی ہے، تو اس کو تو آپ نے سٹے کیا ہوا ہے۔ اگر کل کو وہ سٹے ویکیٹ ہو جاتا ہے اور درخواستیں منظور نہیں ہوتی اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے، تو پھر آپ جو یہ پروسیڈنگ کر رہے ہیں نیب والے قانون کی، اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ انہوں نے جو 29 تاریخ کو یہ آبزرویشن دی تھی تو اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو گیا۔ دونوں جج کہتے ہیں جناب اسی نہیں مندے، اسی انہیں سننا ہی سننا، اور سید منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب نہ کرو انج، میں پھر کہہ رہے ہیں بار بار۔ اور دوران سماعت بھی یہ جو 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت درخواستیں ہوتی ہیں، ان میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب یہ مفاد عامہ کو کوئی مسئلہ ہے، اس میں کوئی بنیادی آئینی حقوق تو متاثر نہیں ہو رہے۔ اب سید منصور علی صاحب بار بار یہ پوچھ رہے ہیں ان کے وکلا سے، عمران خان کے وکیل سے، خواجہ حارث احمد سے، جناب آپ یہ بتائیں کہ کس بنیادی آئینی حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ اور انہوں نے کہا جناب پورا زور لگا رہے ہیں ہم غلطی ڈھونڈنے کی کہ غلطی ڈھونڈ لی جائے، لیکن غلطی مل نہیں رہی۔ اور جب یہ انہوں نے بات کی ہے تو جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ججز تھے ان کو کوئی خیال نہیں آیا کہ جناب ہاں یہ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی زور لگا رہے ہیں۔ اچھا الٹا پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا بندیال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں یار براہ راست جو ہے نا ڈائریکٹ تو بنیادی انسانی حقوق متاثر نہیں ہوتے، لیکن انڈائریکٹ متاثر ہوتے ہیں اور ہم وہ ڈھونڈیں گے۔ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں سید منصور علی شاہ صاحب کہ جناب آپ ڈھونڈنا کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر وہ جو میں نے کہا تھا میوچل لیگل اسسٹنس والی بات کہ دوسرے ملک سے جو ہم لیتے ہیں باہمی معاونت ہوتی ہے، قانونی معاونت دو ریاستوں کے درمیان، کہ وہاں سے جو دستاویز آتی ہے وہ پروفڈ اب تصور نہیں کی جاتی، تو اس پہ اب لے کے بیٹھ گئے ہیں ایم ایل اے کو۔ چیف جسٹس صاحب کی آپ دیکھیں یہ پہلے ہوگا بڑا خرچہ ہو جایا کرے گا، وہ بھائی میرے وہ اربوں روپے منصور علی شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اربوں روپے آپ لوگوں نے خرچے ہیں، جو باہر تفتیش کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، براڈ شیٹ والوں کو دیے، وہاں کتنے پیسے دیے، اور سوئس بینک والے جو اکاؤنٹس تھے زرداری صاحب وہاں کتنے پیسے خرچ کیے، اور ایون فیلڈ والے معاملہ ان کے جو اثاثے ڈھونڈنے میں کتنے خرچ کیے، لیکن نکلا گیا کچھ بھی نہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 50% بھی جو مقدمات ہیں ان میں سزا نہیں ہوتی، نیب والا جو کیس ہے۔ اچھا چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے نا وہ تو جناب جو اس میں سزا دینے کا تناسب 70% سے بھی کم ہے، 30-40% جو قتل کے مقدمات ہیں نا ان میں انصاف ہوتا ہی نہیں۔ کس نے دینا ہے انصاف؟ اس پہ بتایا منصور علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا جناب جو آپ کا جسٹس سسٹم ہے، کرمنل جسٹس سسٹم، اس میں تو ملزم جو ہے
CRPC के तहत फेवरेट चाइल्ड होता है आपका, तो सजा क्या देनी है आप लोगों ने? फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने इमरान खान जो दरखास्त गुजार हैं उनकी नीयत पर भी शक का इजहार किया है। उन्होंने कहा जी हम कैसे मान लेंगे जनाब नेक नीयती के साथ ये अदालत में आए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, पार्लियामेंट में बैठे रहते और अपने हल्के की नुमाइंदगी जो है, इनकी जिम्मेदारी थी कि अपने हल्के की नुमाइंदगी करते जितने भी PTI के अरकान थे, लेकिन ये छोड़ के बाहर निकल गए। और फिर वो सीटें खाली भी नहीं हुई कि जनाब इनकी जगह और नुमाइंदे आ जाए, इलेक्शन ही नहीं हो सका उन पर, रोले में रखा। कभी जनाब मंजूर हो गया है जनाब इस्तीफ़ा, कभी मंजूर नहीं हुआ, हमने इस्तीफ़ा दिया है, हमने नहीं इस्तीफ़ा दिया, कभी अदालत में जा रहे हैं, कभी स्पीकर के पास जा रहे हैं, आपको पता है सारे मामले का। और एक दिन पहले उन्होंने जो बात की थी वो ब्रादर जजेस वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, ब्रादर जजेस को शर्मिंदा कर रहे हैं लेकिन वो शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं। कल भी सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब 17 गैर मुंतखब जज जो हैं वो बैठ के जो मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल पार्लियामेंट है उसके बनाए हुए कानून को कैसे कलअदम कर सकती है। आज भी उन्होंने ये पूछा ख्वाजा आरिफ अहमद साहब से जो इमरान खान के वकील हैं कि भाई किस कानून के तहत हम कलअदम करें, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है तो नजर नहीं आ रही है इससे। आप कहते हैं जनाब कलअदम कर दें, तो किस कानून के तहत कलअदम कर दें? बहरहाल जो इनका ख्याल था कि जनाब एक लिस्ट आएगी लंबी चौड़ी कि जनाब पता नहीं किस किस ने फ़ायदा उठाया हुआ है, तो वो लिस्ट पेश कर दी गई है। उसमें आसफ अली जरदारी साहब का नाम है, शाद खाकान अब्बासी साहब का नाम है, खुर्शीद जमाली का नाम है, और मंजूर कादर काका का नाम है, अनवर मजीद का नाम है, हसैन लवाई का नाम है, और जो ओमनी ग्रुप है उसके अब्दुल गनी मजीद साहब का नाम है। इस तरह के कुछ लोग हैं जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया हुआ है। बहरहाल इसमें शाद खाकान अब्बासी के सिवा नून लीग का तो कोई बंदा जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो इससे भी शायद चीफ जस्टिस साहब और एजाजुल हसन साहब को मायूसी हुई होगी, लेकिन वो लग रहा है कि वो तुले हुए हैं। जब उनकी बात ही नहीं मान रहे फुल कोर्ट वाली, सैयद मंसूर अली शाह साहब वाली, और जो बुनियादी इंसानी हकूक वाली बात है वो मान ही रहे, वो कहते हैं इनडायरेक्ट बिलवास्ता तौर पे बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है इससे तो ये लगता है कि जनाब जो बेंच है ना 2-1 से ये फैसला आना है। और फिर ज़ाहिर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होनी है। जब नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होगी तो बंदयाल साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके होंगे और बेंच बनाएंगे, काजी साहब 2 जज ये होंगे, 1 जज चलो साथ और मिला लें, तो फिर फैसला जो मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा वजदान कह रहा है कि फिर वो फैसला जो है वो प्रिवेल करेगा। जो इख्तिलाफी नोट होगा वो फैसला बन जाएगा इस केस में। इनकी कोशिश है कि कलअदम कर दें तरामीम, लेकिन 2-3 तरामीम जो है ये सारा कानून नहीं उड़ाएंगे, सारी तरामीम नहीं उड़ाएंगे, बल्कि कुछ कुछ तरामीम उड़ाएंगे। MLA वाली जो है वो उड़ा देंगे, और जो बेनामीदार वाली है वो उड़ा देंगे, और वो जो है कि जनाब 50 करोड़ वाली कि 50 करोड़ जो उससे ज़ायद रकम वाला है वही मामला नैब में आएगा, वो उड़ा देंगे। प्ली बार्गेनिंग वाला मामला ले आएंगे बीच में दोबारा। लेकिन ये जो 30 दिन का 90 दिन से 14 दिन रिमांड हुआ था कि पहले 90 दिन होता था, फिर 14 दिन ले आए, लेकिन फिर तरमीम करके 30 दिन कर दिया, और ज़मानत का जो है वो हक दे दिया मुलज़िम को। ये चीज़ें बरकरार, क्योंकि इससे खान साहब को फ़ायदा होना है, खान साहब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ें बरकरार रखेंगे, बाकी चीज़ें जो हैं वो उड़ा देंगे, मुझे ये लग रहा है। देखिए अब क्या आता है फैसला। कहते हैं ना आखिरी जो हतमी दलाइल हैं वो अटॉर्नी जनरल ने देने हैं पीर वाले दिन, तो देखिए फिर पीर वाले दिन क्या बनता है। लेकिन सैयद मंसूर अली शाह साहब जो बेंच के अंदर बैठ के कोर्ट में, ओपन कोर्ट में अपने 2 ब्रादर जजों के साथ कर रहे हैं, वो ब्रादर क्या है, ब्रादरान यूसुफ हैं, वो उनके साथ जो कर रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं। अच्छा, अब जनाब सदर मुमलिकत साहब जो हैं वो किन चक्रों में हैं और उनको रोकने वाले किन चक्रों में हैं। अब आपको पता होगा कि उन्होंने ख़त लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाब आएँ ज़रा मुलाकात करें, तो मैंने क्योंकि असम्बलियाँ तहलील की थी, मैंने तारीख देनी है, तो उन्होंने कहा जनाब ये आपका इख्तियार ही नहीं है, आपने तो असम्बलियाँ तोड़ी नहीं, ये तो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे तोड़ी हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने तोड़ी हैं दूसरे लफ्ज़ों में, तो आपका जो इख्तियार है ना 48 सब आर्टिकल 5 के तहत,
अगरचे मैं इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता, उन्होंने कहा जनाब आप नई तारीख देख सकते हैं। फिर उन्होंने वज़ारत क़ानून को लिखा, वज़ारत क़ानून ने भी कहा जनाब इलेक्शन कमीशन ठीक कहता है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक थोड़ी सी लचक भी दिखा दी कि जनाब अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये आपका इख्तियार है, आप असम्बली तहलील भी करें, तो फिर आपने तो कौमी असम्बली तहलील की थी, उसकी डेट देनी है, सूबों की जो तारीख है वो तो फिर गवर्नरों को देनी पड़ेगी, ये नया एक कटा खुल जाएगा। तो अब सदर मुमलिकत साहब जो हैं वो ज़िद हैं कि जनाब मैंने आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत तारीख दे देनी है, आगे अदालतें जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, अवाम जाने और सियासी जमातें जाने, ये इस बात पे तुले हुए हैं। और ख़बरें कुछ ऐसी आ रही थी कि जनाब आइंदा 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर अंदर वो ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि 54 दिन चाहिए होंगे इलेक्शन के लिए, शेड्यूल वगैरह जो जारी होता है, तो वो चाहते हैं नवंबर में हो, तो फिर जितनी जल्दी वो अनाउंस करेंगे, वो चाहते हैं कि जनाब 54 दिन का शेड्यूल जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर फिट हो जाए किसी तरीके से। तो अब ये पता चला है कि जनाब सदर मुमलिकत से आज सुबह ऑफिस टाइम में मुलाकात होती है कुछ लोगों की, ताकतवर लोगों की, हसास अदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 बड़े अफसर जाते हैं, अच्चन तारे वाले फुल्लां वाले बड़े लोग, तो वो उनसे मुलाकात करते हैं सदर मुमलिकत से, और जिस फ्लोर पे सदर मुमलिकत बैठते हैं वो पूरा फ्लोर जो है वो खाली करवा लिया जाता है, और वो सामान होते हैं और सदर साहब होते हैं। अब बात क्या हुई है ये तो किसी को अंदाज़ा नहीं, लेकिन मामला जो है, जो एजेंडा है, वो ये पता चला है कि इलेक्शन का, कि सदर साहब बाज आ जाओ, जहाँ तक तो है। अब क्या कहा होगा उन्होंने, ये कहा होगा ना सदर साहब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका हुआ है, दरख्वास्तें वहाँ पेंडिंग हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लें, जल्दी ना करें, माहौल ख़राब ना करें, अच्छा खासा मामला चल रहा है, अगर अदालत कोई फ़ैसला करती है तो फिर आपको जो इख्तियार देती है तो फिर आप कर लीजिएगा, इतनी जल्दी ना कीजिएगा। अब सदर साहब दोबारा फिर मुशावरत कर रहे हैं, पता ये चला है, जो उनकी लीगल टीम है, जो उनके जो कंसल्टेंट हैं, लीगल कंसल्टेंट, उनसे दोबारा ये बातचीत कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने वादा नहीं किया उनके साथ, जो आए थे वादा लेने, उनके साथ कोई वादा नहीं किया। अच्छा देखते हैं इस टाइप की बात की, वरना दोबारा रिव्यू करने की अपनी लीगल टीम के साथ उनको क्या ज़रूरत थी, अपने कंसल्टेंट के साथ, लीगल कंसल्टेंट के साथ दोबारा उन्होंने क्यों राब्ता किया। इसका मतलब ये है कि अभी तक सदर साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आमादा नहीं हुए पीछे हटने के लिए, वो बीच में कोई ना कुछ करेंगे ज़रूर, वो कहते नहीं लुच तलना, कोई ना कुछ तलनगे ज़रूर हो। और दूसरी तरफ जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जनाब बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। ये दरअसल फ़ैसला जो है ना, जो उन्होंने किया है कि जनाब जो हल्का बंदियाँ हैं उसका काम जो कहते हैं 30 नवंबर तक का मुकम्मल कर लेना है हमने, 14 दिन पहले 14 अगस्त को मुकम्मल होना था, और अगर ये 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाता है तो फिर ये फरवरी के पहले हफ्ते में भी इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि 54 दिन कम से कम चाहिए। जब शेड्यूल जारी होता है ना, उस दिन से लेके पोलिंग तक ये 54 दिन चाहिए होते हैं। कागजात नामजदगी इतने दिन में होंगे, फिर उज़रदारियाँ इतने दिन में निपटाई जाएंगी, कागजात नामजदगी का फैसला फलां तारीख को होगा, ये सारा उसमें होता है, और वोटिंग जो है वो पोलिंग जो है वो फलां तारीख को होगी, उसके लिए कम से कम 54 दिन दरकार होते हैं। तो चलो 2 माह लग जाएंगे, तो फिर ये जनवरी के एंड पे या फरवरी के शुरू में इलेक्शन जो है वो पोलिंग डे हो सकता है। तो ये दरअसल 29 अगस्त को जब पीपल्स पार्टी वाले मिल के आए हैं ना, उनसे उन्होंने ये कहा था कि जनाब हल्का बंदियों को जो टाइम है ना, इसको ज़रा छोटा करें। तो वो उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी उन्हें कि जनाब बिल्कुल हम इस बारे में गौर करेंगे और कोशिश करेंगे। और दूसरी उन्होंने कहा थी जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन में, वो उन्होंने नहीं मानी थी, लेकिन ऐसी खबरें भी हम तक पहुंच रही हैं कि हो सकता है कि जो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान है वो भी जल्द कर दिया जाए। ये 30 नवंबर का इंतज़ार ना किया जाए कि 30 नवंबर के बाद शेड्यूल का ऐलान किया जाए, वो पहले भी शेड्यूल का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अनाउंस कर देंगे, लेकिन जो अमल दरामद है वो 30 के बाद ही शुरू होना, क्योंकि नए हल्के बनेंगे, नई वोटर लिस्टें होंगी, तो उसके हिसाब से
फिर वो ज़ाहिर कागजात लोगों ने जमा करवाने हैं, तईद के निंदगान, तजवीज़ के निंदगान उन्होंने अपने हल्के से लेने हैं। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो बाद में शुरू होगा, लेकिन अनाउंस पहले कर सकते हैं वो कि जनाब फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होगा और फ़लाँ तारीख से कागजात नामज़दगी का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। तो अब थोड़ी सी तसल्ली हुई है लोगों को कि जनाब जो इलेक्शन वाला मामला था ना, पता नहीं कितने 2 साल तक या पता नहीं कितने माह तक आगे चला जाएगा, वो ये लग रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये हो गए हैं जनाब दोबारा गिरफ़्तार। ये इसका पस मंज़र थोड़ा-सा समझने बड़ा ज़रूरी है, और अदालतें क्या कर रही हैं ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। इसमें मेरा ख़्याल है कि इंतज़ामिया से ज़्यादा अदलिया का कसूर है। अदलिया ने अगर सबके लिए एक जैसा पैमाना रखा हो तो फिर इंतज़ामिया भी उनकी हर बात माने, अवाम भी खुश रहें, लेकिन इन्होंने पैमाने अलग अलग रखे हुए हैं। अब ये हुआ कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ने एक दरख्वास्त दी कि जनाब मेरे खिलाफ बड़े मुकदमात झूठे बनाए जा रहे हैं और मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाता है या गिरफ़्तार करने की कोशिशें जारी हैं, तो मेरी गिरफ़्तारी रोकी जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये फैसला जारी फरमा दिया कि परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। अब वो दंदनाते फिर रहे हैं, मुकदमात हैं, एंटी करप्शन के मुकदमात हैं, नैब के मुकदमात हैं और कई मामलात हैं। एंटी करप्शन तो कई मुकदमात इनके खिलाफ हैं जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास दर्ज हैं, वादा माफ गवाह इनके खिलाफ आए हुए हैं, लेकिन ये जनाब इनकी मौजें लगी हुई हैं। फिर हुकूमत जाती है, इनकी जो दरख्वास्त थी वो थी निगरान हुकूमत के खिलाफ पंजाब की, तो फिर पंजाब हुकूमत जाती है इंट्रा कोर्ट अपील में। जब अपील फाइल होती है तो फिर जो डिवीज़न बेंच है वो सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर देता है, और इसी दौरान नैब वाले इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, इनका रिमांड भी हो जाता है। बाद में जो डिवीज़न बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसके पास अपील थी, वो पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर देता है और कहते हैं अब सिंगल बेंच का जो फैसला था कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए वो दुरुस्त है। डिवीज़न बेंच के इस फैसले की वजह, हतमी फैसले की वजह से जो उनका इंटरिम आर्डर था, जो उन्होंने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया था, तो वो उनका इंटरिम आर्डर भी ख़त्म हो जाता है। तो अब ये चले जाते हैं फिर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही साहब और कहते हैं ना मेरा जो रिमांड था वो गलत हुआ है, मेरी गिरफ्तारी ही गलत है। अब उसमें जो कानून है, जो रूल्स हैं हाई कोर्ट के, वो ये कहते हैं कि अगर नैब से मुतल्लिका मामला हो तो उसको डिवीज़न बेंच ने सुनना होता है, सिंगल बेंच नहीं सुन सकता। अब इन्होंने नैब में जो गिरफ्तारी हुई है उसको चैलेंज किया है। नैब के वकील एतराज करते हैं, जज साहब हैं अमजद रफीक साहब, वो कहते नहीं ये तो अमल दरामद का केस है, जो सिंगल बेंच का पहले वाला फैसला है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, तो अमल दरामद वाला मामला है। वही मेरे अमल दरामद वाला है, लेकिन अब नैब बीच में आ गया है तो अब डिवीज़न बेंच को भेजे, लेकिन उनका नहीं जनाब मैं नहीं सुनना है, लाओ जी गिरफ्तार कहाँ पे हैं, उनको लेके आए। पहले दिन भी वो रोला चला डालते रहे कि जहाँ भी है परवेज़ इलाही को जनाब लेके आए, वो लेतोलाल से काम लेते रहे। फिर उनका जनाब मैं डीजी ने आपके वारंट जारी कर दूंगा। फिर उनका जनाब आज यानी 1 सितंबर को वो कहते हैं जनाब उनको पेश किया जाए, मोहलत ले ली इन्होंने। फिर जो टाइम दिया गया था उस वक्त फिर नहीं पेश किया गया। फिर इन्होंने कहा जनाब, इन्होंने पुलिस वालों ने ये कहा कि जनाब नैब का ये आ गया हमें लेटर कि इनको पेश करना है अदालत में, लेकिन मसला ये है कि सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। जो हमारी बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, वो तो कच्चे में जो ऑपरेशन हो रहा है डाकुओं के खिलाफ, वहाँ हमारी गाड़ियाँ मसरूफ़ हैं। इन्होंने कहा जनाब परवेज़ इलाही के बंदे ने कहा ना हम अपनी गाड़ी दे दें। बहरहाल फिर भी जैसे तैसे करके परवेज़ इलाही साहब अदालत में पेश कर दिए जाते हैं। सबको पता था कि जज साहब का मूड ये है, तलब करने का मतलब ही ये था कि उन्होंने इनकी गिरफ्तारी जो है रिमांड पे है, बंदा ये सोचिएगा रिमांड पे जमानत भी नहीं हो सकती। तो इन्होंने ये किया कि नहीं जनाब इनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। ये अब रास्ता कहाँ से खुला हुआ है ये वाला, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो हरकतें की हुई हैं इमरान खान को, जिन्होंने कहा था जनाब इनको, जिसमें उन्होंने कहा था गुड टू सी यू, वही वाला केस जनाब, वो जब 9 मई को गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद जनाब वो सुप्रीम कोर्ट बुला लेती है उनको अपने पास और फिर कहती है जनाब इनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए और अपने पास रखें, कल
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं इनको घर तक छोड़ के आए, मर्सिडीज गाड़ी में बिठा के इनको बुलेट प्रूफ में घर छोड़ा जाता है लाहौर, सरकारी खर्चे पे। ये अदालत का काम नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अदालत ने कहना घर छोड़ के आए। यही काम जस्टिस अमजद रफीक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में किया। अब जब उनकी हो जाती है तो फिर बाहर वो कहते हैं पुलिस वाले खड़े हुए हैं, लतीफ़ खोस्ता साहब जो है बड़े बेचैन होते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं वो साथ उनके कमरा अदालत में, हालांकि वो उनके वकील नहीं थे, लेकिन वो जनाब उनके वकील बन गए। उनका जनाब बाहर पुलिस बड़ी है और सिविल कपड़ों में बड़े लोग हैं, स्पेशल उन्होंने हमें ख़तरा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा परवेज़ इलाही को। तो अब जज साहब कहते हैं जनाब उन्होंने जो एडिशनल रजिस्ट्रार है सिक्योरिटी हाई कोर्ट उनको बुलाते हैं, मुतलका पुलिस को बुलाते हैं, वो DIG को बुलाते हैं, वो कहते हैं जनाब इनको घर छोड़ के आए। ये एक नया तमाशा। अच्छा, ये जो है ना, जो मैं कह रहा हूँ रिमांड के दौरान या गिरफ्तारी को चैलेंज करना, जो मीर शकील रहमान को प्लाट वाले केस में, झूठे केस में बिला वजह पकड़ा हुआ था इन्होंने, उनकी गिरफ्तारी लीगल थी, उन्होंने भी चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में। एतजाज हसन साहब उनके वकील थे, लेकिन उनकी दरखास्त नहीं मानी गई थी। उनकी दरखास्त मुस्तरद हो गई, भाई एक दफ़ा रिमांड हो गया है, गिरफ्तारी जैसे भी हुई है, कानूनी या गैर कानूनी, अब आप उनकी हिरासत में हैं, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये वैसे ये तयशुदा असूल है, हब्से में जाके जब दरखास्त आती है ना, वो गैर कानूनी तौर पे अपनी हिरासत में रखा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी जब डाल दी जाती है रोजनामचे में कि ये गिरफ्तार है, तो हब्से भेजा की दरखास्त गैर मौसर हो जाती है। लेकिन यहाँ पता नहीं किस कानून के तहत, यानी जो आइन के आर्टिकल 199 के तहत इन्हें जुडिक्शन में इनके पास इख्तियार है कानून की अमलदारी का, ये किस कानून की अमलदारी करवा रहे हैं, किस कानून पर अमल करवा रहे हैं। अब वो बुलाते हैं जनाब उनको, पुलिस वालों को और अपने एडिशनल रजिस्ट्रार वगैरह को, उनको कहते हैं इनको बहाजत इनके घर छोड़ के आए। अब ये कह रहे हैं परवेज़ इलाही के वकला और खोस्ता साहब कि जनाब अली हमें ख़तरा यह है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जो जजमेंट है वो मुतलका इस हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ना पुलिस, ना कोई इदारा, ना कोई नैब इनको गिरफ्तार नहीं करेगा, हत्ता के नज़रबंदी के हुक्म के तहत भी इनको हिरासत में नहीं लिया जा सकता। ये जज साहब हुक्म जारी कर रहे हैं, यानी वो कुछ भी कर दें, वो जज को ही गालियां दे दें, कमरा अदालत में चपेड़े मार दें सेक्रेटरी को, उनको गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। जज साहब ने खुद हुक्म फरमा दिया। ये कौन सा कानून है यार जिसके तहत मुलजिम को गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। अच्छा खैर, उन्होंने वो कह रहे हैं हमें खतरा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई आपने जब ये हुक्म दे दिया है तो फिर आपका उससे आगे कोई काम नहीं है जज साहब का। अगर आपके हुक्म की तमील नहीं होती, हुक्म अदूली होती है, हुक्म से रूगर्दानी की जाती है, तो आपके पास तो ही अदालत का इख्तियार है, आप बुला लें उनको। वैसे भी आपने रिपोर्ट तो मांगी है इस केस में। ये कहते हैं जब उनको घर छोड़ के आए, अब जनाब इनको हिफाजत के साथ घर छोड़ने जाते हैं। ज़हूर इलाही रोड पे इनका घर है, कनाल रोड से जा रहे हैं ये, तो लतीफ़ खोस्ता साहब जो हैं वो अपनी निगरानी में इनको छोड़ने जा रहे हैं। वो गाड़ी में बैठे हुए हैं इनके साथ बराबर सीट पे, लेकिन जब वो इस्लामाबाद वाले आते हैं वो गाड़ी रोक लेते हैं। ज़हूर इलाही रोड से कनाल रोड पे जब टर्न करती है गाड़ी ज़हूर इलाही रोड की तरफ, एन उस जगह पे इनकी गाड़ी रोक ली जाती है। जब गाड़ी रुकती है तो खोस्ता साहब जो हैं वो मुज़ाहमत नहीं करते, वो हाई कोर्ट की जजमेंट का हवाला नहीं देते। वहाँ तो हाई कोर्ट में तो कह रहे थे जनाब बड़ा वाज़ेह आर्डर है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब वो गिरफ्तार करने वाले आए तो नीवी नीवी होके पतली गली चो निकल गए। ये देखो हसन नाम के एक SP हैं इस्लामाबाद पुलिस के, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DC का हुक्मनामा लेके आते हैं कि जनाब 3 MPO के तहत परवेज़ इलाही साहब को 30 दिन के लिए नज़रबंदी का हुक्म है हमारे पास। अच्छा, अब ये देखें कि 30-40 मीटर दूर या 50 मीटर दूर इनका घर है परवेज़ इलाही साहब का। अब परवेज़ इलाही को उनके दरवाजे तक अगर ले जाते पुलिस वाले, तो जो हाई कोर्ट का हुक्म था कि इनको घर तक पहुंचा देना आप लोगों ने, वो पूरा हो जाता, लेकिन ये पीछे रोक लिया गया।
30-40-50 मीटर पीछे घर से रोक लिया गया। ये एक पैगाम है उन जजों के लिए जो हट धर्मी करते हैं, वज़ीद हो जाते हैं, इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, नई नई नज़ायर पैदा कर रहे हैं, नई मिसालें बना रहे हैं, उनके लिए कि जनाब ये देखें, फिर आपने कहा था ना घर छोड़ के, अब जो मुतलका DIG ऑपरेशन उनके साथ थे, घर छोड़ने जा रहे थे, वो जो कहते हैं जनाब वो लीगल आर्डर था एक, तो उसके तहत हमने उनके हवाले कर दिया। वो हमने पूछा कि जनाब क्या हुक्म, क्या कौन सा आर्डर दिखाएं, उन्होंने दिखाया हमें, तो हमने हैंड ओवर कर दिया। ये 30-40 किलोमीटर बाद भी हो सकता था। और दूसरी बात ये कि जो जज साहब कह रहे हैं कि घर छोड़ के आए पुलिस वालों को, और ख़तरा ये है कि गिरफ्तार कोई और ना कर ले, इसका मतलब जो लाहौर पुलिस है जिसको आप हुक्म दे रहे हैं कि जनाब इसको घर तक छोड़ के आना है, वो अगर कोई और एजेंसी इनको गिरफ्तार करना चाहती है तो वो क्या वो मुज़ाहमत करें, एक दूसरे पे बंदूकें तान लें? ये क्या आर्डर दिया आपने? हैरानी वाली बात है, सीधी सी बात थी। अब यही कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया। इमरान खान के साथ अगर वो ना होता जो उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मोहब्बत में कि जनाब इनको पुलिस लाइन में रखें, इतने मेहमान जो हैं उनकी भी खातिर तवाज़े करें, TV शीवी लगा के दें, और कल फिर बड़ी इज्जत के साथ इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए, अगर वो ना होता तो 9 मई वाले मामलात जो हैं इतने ना बिगड़ते, काबू पा लिया गया था। इमरान खान के साथ जो ये हो रहा है, अगर अदलिया जो है अपने फ़राइज़ सही आइन और दायरे के अंदर रह के सबके साथ बराबरी की सतह पे कर रही हो ना, फिर ना ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला होता, ना इमरान खान के साथ जो हो रहा है ये हो रहा होता। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ्तारी है ना, ये एक सियासतदान की तरह पुरवकार अंदाज में उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। अब जब खोसा साहब निकले हैं ना गाड़ी से और पतली गली से निकल गए हैं, तो ये दुबक गए बीच में, तबीयत कहते हैं ख़राब होगी जनाब मेरी। परवेज़ इलाही साहब अब गाड़ी से निकल नहीं रहे, वो बाकायदा डंडा डोली करके नहीं, पकड़ के टांगों से और कंधों से पकड़ के इनको लेके जाते हैं और अपनी गाड़ी में डाल के फिर ये इस्लामाबाद ले जाते हैं। अब तो हिंद अदालत की दरखास्त होगी, जब फवाद चौधरी को उन्होंने कहा था पेश करो तो वो भी इस्लामाबाद ले गए थे ना, फिर क्या हो गया था? लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कर लिया था? वो कहेंगे जनाब इस्लामाबाद जो है वो आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता, अगर इन्होंने चैलेंज करना है इसको तो फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करें। लेकिन कानून जो है कि जिस हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में, इलाकाई जुरिडिक्शन में कोई वारदात हुई हो तो उस हाई कोर्ट के पास भी ये इख्तियार है, बल्कि इवन कि अगर जो मुतासरा फरीक है वो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहायश पजीर है तो वो भी उस हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। मे भी ये लाहौर हाई कोर्ट से रजू करें। अब देखिए फिर हाई कोर्ट जो है किस हद तक खड़ी होती है। समझ आनी चाहिए कि इसके पीछे मामला क्या है, मामलात क्या हैं। या तो हर किसी के साथ आप इसी तरह का इंसाफ कर रहे हो ना, मेरे लिए आर्डर हो सकता है कि इसको किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। ऐसे आर्डर हो जाते हैं कि आप अदालत को पहले बता, इसमें तो ये भी नहीं है सीधा सीधा आर्डर है इनको गिरफ्तार न किया जाए। खुदा का खौफ करें, वो जो मर्जी करता फिरे, उसको गिरफ्तार ही ना किया जाए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।